Hello students, our next topic is GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product is the total income generated in the economy in the factor of production, in the process of production. So total income generated in the economy, or we can define it by consumption method. Okay? The total consumption expenditure made in one financial year on the goods and services in one accounting year is GDP. Or we can define it by different way. The total consumption expenditure made by all the normal resident of a country is the GDP. Now, there is another term next, market price. Market price is the price at which we calculate the income when the goods is available in the market. The final goods which are ready in the market for consumption, for the instant consumption, the price of that good is included. In that price, we include all the intermediate cost or indirect taxes. The goods available in the market have some indirect taxes like entertainment tax, amusement tax, sale tax, excise duty. There are different categories of indirect taxes. When these taxes, tariffs, toll plazas tariffs, all these taxes are included in the goods when it is available in the market only. When it is not available in the market, indirect taxes are not included. So the market price is the price at the good which is available in the market. The difference, the important thing is that indirect taxes are included in the market price. Now there is a next term, factor cost. Factor cost is the cost of goods at the production level. When the goods is produced, manufactured and it is in the factory, the all cost incurred in the production, when the good is inside the premises of the factory, it is the factor cost. Subsidy given by the government to producer to produce the good is added in the factor cost. But at the factor cost, the indirect taxes are not included because the good is not in the market. Indirect taxes is included in the market price, not included in the factor cost. Same as subsidy. Subsidy is the financial help given to the producer to produce the good and sell it at the price given by the government or at the low price. Example, one book produced by the factory, the cost of the production is 100 rupees. But government asked the producer to sell that book at the cost of 50 rupees. So the producer will suffer a loss of 50 rupees. कौन देगा उसको 50 rupees? So government कहती है कि उसकी लागत या उसकी जो कीमत है, वास्तविक कीमत, फैक्टर कॉस्ट वो 100 रुपये है, आप इसको 50 रुपये पे बेचो. जो लॉस हो रहा है 50 रुपये का, वो हम आपको फाइनेंशियल हेल्प के द्वारा दे देंगे आप जब बनाओगे, मगर बेचना आपको 50 पे ही है. तो 50 रुपये उसने अपने खुद के लगा करके बुक्स को बनाई और 50 रुपये गवर्नमेंट ने उनको दे दिया. तो प्रोड्यूसर को वो तो 100 रुपये मिल गए, मगर प्रोड्यूसर मार्केट में उसको बेच रहा है 50 रुपीज़ में, बिकॉज द सब्सिडी इज पेड टू द प्रोड्यूसर एट द फैक्टर कॉस्ट. जब उसकी फैक्टर कॉस्ट की बात आती है तभी उसको सब्सिडी मिल जाती है. सब्सिडी पहले मिल जाती है, बेचने से पहले मिल जाती है, उसको बनाने पे मिलती है. तो सब्सिडी आर इंक्लूडेड इन द फैक्टर कॉस्ट, नॉट इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस.
अगर मैं कहूँ कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस ये है कि फैक्टर कॉस्ट पर सब्सिडी जुड़ती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं जुड़ते। मार्केट प्राइस पर फैक्टर कॉस्ट आर नॉट, सब्सिडी इज नॉट इंक्लूडेड बट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड। सो वेरी सिंपल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस। टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है जब हम, फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है जब हम फैक्टर इनकम अब्रॉड से प्राप्त कर रहे हैं, फ्रॉम अब्रॉड, एंड टू अब्रॉड जब हम फैक्टर इनकम्स अब्रॉड को दे रहे हैं। तो नेट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया जाए तो नेट फैक्टर इनकम इन अब्रॉड निकल आएगा। सेम वे नेट एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में हम बेच रहे हैं और इंपोर्ट में मंगा रहे हैं, दोनों का डिफरेंस नेट एक्सपोर्ट। उसी तरीके से नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडी को माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये आगे इंपॉर्टेंट है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जोड़ते। फैक्टर कॉस्ट पर सब्सिडी जोड़ती है, मार्केट प्राइस पर सब्सिडी नहीं जोड़ती है। दिस वाज द इंपॉर्टेंट जॉब। नेक्स्ट टॉपिक इज थिंग्स इंक्लूडेड इन द जीडीपी। जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। द थिंग्स इंक्लूडेड इन द जीडीपी आर, फाइनल गुड्स ही जोड़ी जाती हैं। जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। इसके अलावा प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये जीडीपी में नहीं जोड़ते क्योंकि ये तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है, केवल एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही हैं चीज़ें, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या सेल्स या परचेज ऑफ द शेयर्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स, ये नहीं होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट ट्रांसफर्स, पेमेंट लाइक पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, पेंशंस, ये नहीं जोड़ते। प्योर प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब कि आपको जो इनकम मिल रही है वो विदाउट फैक्टर सर्विसेज मिल रही है। फादर इज गिविंग यू 10,000 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी, तो दैट पॉकेट मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसमें कुछ चीज़ें और नहीं जुड़ती। सेकेंड हैंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, मैंने अपनी प्राइवेट कार किसी को बेच दी, उसने किसी और को बेच दी, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, वाट एवर द सेल्स आर हैपनिंग इन आवर कंट्री ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स और द थर्ड हैंड गुड्स, दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड। क्योंकि उसको तो हमने जीडीपी में एक बार जब वो प्रोड्यूस हुई तब हमने जोड़ लिया था, अब तो केवल उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने अपना घर बेच दिया 5 करोड़ में या 10 लाख में, तो ये जो 10 लाख है दैट इज माई इनकम, बट इट विल नॉट इंक्लूड इन द जीडीपी बिकॉज ये जब घर बना तभी इसकी कॉस्ट पहले से जुड़ चुकी है, सेकेंड हैंड गुड्स की कॉस्ट नहीं जुड़ती है। मगर अगर मैं सेकेंड हैंड गुड्स फॉरेन कंट्री को बेचता हूँ या फॉरेन कंट्री से खरीद करके लाता हूँ सेकेंड हैंड गुड्स, देन इट्स कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द
डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी में वो जुड़ेगी, बिकॉज द एसेट्स बढ़ गई। विदेशों को हमने अगर कुछ सेकेंड हैंड गुड्स बेच दिया तो हमारे देश की एसेट्स घट गई, तो वो जुड़ेगा। इन द सेम टर्न अगर हम फॉरेन कंट्री से कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीद के लाते हैं तो भारत की या अवर कंट्री की एसेट्स बढ़ जाएंगी। सो व्हेन द एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज तो वो जीडीपी में जुड़ जाएगा। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, कमीशन। सी, मैंने एक एजेंट को हायर किया कि मेरा एक कार आप बिकवा दो, आई नीड ओनली 5 लाख रुपीज़। कार को उसने 8 लाख रुपीज़ में बेच दिया, या एक प्लॉट मैंने कहा कि आई नीड 1 प्लॉट, फर्स्ट हैंड प्लॉट, और वो आपने मुझे प्लॉट दिला दी। एजेंट ने मुझे 5 लाख का प्लॉट दिलाया, मगर उसने 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमीशन कमा लिया। या उसने 7 लाख का प्लॉट मुझे 8 लाख में दिलवाया और 1 लाख रुपए उसका कमीशन हो गया। सो कमीशन ऑन द फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड और एनी गुड्स इज द इनकम, वो हमारी इनकम है और वो जीडीपी में जुड़ती है। सो सेकेंड हैंड गुड्स की या किसी भी गुड्स की ट्रांजैक्शन में जो इनकम अर्न in the form of commission is included in the GDP. Okay? एक और चीज इसमें नहीं जुड़ती है, सेल्फ कंज्यूम गुड्स, नॉन मार्केट गुड्स। जो नॉन मार्केट गुड्स है या जो सेल्फ कंज्यूम गुड्स हैं वो दोनों इसमें नहीं जुड़ती हैं। मेरी एक मिठाई की दुकान है, मैंने एक रसगुल्ला निकाला और खुद खा लिया, सेल्फ कंज्यूम कर लिया, तो उस गुड्स की प्राइस, कीमत जीडीपी में नहीं जुड़ेगी, बिकॉज इट इज सेल्फ कंज्यूम। इलीगल ट्रांजैक्शंस, ये जो स्मगलिंग्स या इलीगल एक्टिविटीज से जो इनकम कमाई जाती है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी। ठीक है। वैल्यू ऑफ लेक्चर, लेक्चर मीन्स आराम। कभी कभी आपको एक टूर ट्रेवल्स पे भेज दिया जाता है कि आपने 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए अपने आराम पर खर्च किए। ये जो वैल्यू ऑफ लेक्चर है, तो आराम पर बताया जो खर्च कर रहे हैं आप, वो भी जीडीपी में नहीं जोड़ती है, बिकॉज इट इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। ये आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देती है, इसलिए ये नहीं जोड़ती।